دربار میں بیٹھے ہوئے سلطان اپنے ہی خیالوں میں گم تھے۔ دربار میں چند فریادی بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ اپنا مسئلہ سلطان کو بتا چکے تھے۔ ان سب کو ہی امداد کی طلب تھی، اور سلطان نے وزیر کو حکم دیا تھا کہ وہ چند دینار لا کر ان لوگوں میں تقسیم کر دے۔ وہ شخص اسی امداد کے منتظر تھے، تبھی اچانک دربار کے دروازے پر ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ سلطان اور دربار میں موجود تمام افراد بری طرح سے چونک گئے۔ سلطان نے آواز کے تعاقب میں دیکھا، دربار کے داخلی دروازے پر تو کوئی نہ تھا، مگر وہ جو آواز سنائی دی تھی وہ اسی سمت سے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلطان اٹھ کر جا کر دیکھتے یا کسی سپاہی کو اشارہ کرتے، اچانک دربار کے داخلی دروازے سے ایک عورت اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ عورت جوان تھی اور خوبصورت بھی، مگر اس عورت کو دیکھ کر سلطان بری طرح سے چونکے۔ وجہ اس عورت کا حلیہ یا عورت ہونا نہ تھا، بلکہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ اس رسی کو پورا زور لگا کر کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زور لگاتی، ایک زوردار غراہٹ بلند ہوتی۔ رسی کے آخری سرے پر ایک عجیب الخلقت کتا بندھا ہوا تھا۔ سلطان اس سارے منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ دربار میں موجود تمام افراد اپنی اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے۔ عورت دربار کے اندر داخل ہو چکی تھی اور اب وہ گھسیٹتی ہوئی اس کتے کو سلطان کی جانب لا رہی تھی۔ کتا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا اور بار بار زوردار طریقے سے غراتا، مگر جس چیز نے سلطان کو حیران کیا کہ شکل سے بے حد خطرناک دکھنے والا یہ کتا اس عورت پر کوئی حملہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ صرف خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے منتظر تھے کہ یہ عورت ان تک پہنچ جائے۔ دربار میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کتا لگ ہی اس قدر خوفناک رہا تھا۔ آخرکار یہ عورت اس کتے کی رسی گھسیٹتے ہوئے عین سلطان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کتا مسلسل زور لگا رہا تھا اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عورت ہانپ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کتے کو۔ وہ مصر کے عام کتوں کی نسبت بالکل مختلف تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ اور بھورے رنگ کے بڑے بڑے بال تھے۔ اس کی جسامت بھی عام کتوں کی نسبت کافی بڑی تھی۔ اس کے خونخوار دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور وہ بھوکی نظروں سے محل میں چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی۔ سلطان کو یک لخت اس کتے کو دیکھ کر جھری سی آ گئی۔ کتا اب عورت سے رسی چھڑا کر دربار میں موجود دوسرے لوگوں پر لپکنا چاہ رہا تھا۔ سلطان کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ درباریوں پر حملہ نہ کر دے، اس لیے سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ وہ اس کتے کی رسی کو نزدیکی نشست گاہ کے پائے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دے۔ وزیر لپک کر آگے آ گیا۔ جیسے ہی اس کتے نے وزیر کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا، وہ لپک کر آگے بڑھا اور اس نے وزیر کے اوپر حملہ کرنا چاہا۔ عورت نے کتے کی رسی زوردار طریقے سے اپنی جانب کھینچی اور اس کوشش میں وہ دھڑام سے زمین پر جا گری۔ سلطان کو تب ہی صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ لپک کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے کتے کی رسی اس عورت سے لے لی۔ کتے نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے سلطان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ایک زوردار آواز نکالی۔ کتے نے سہم کر سلطان کی آنکھوں میں دیکھا اور جانور ہونے کے باوجود جیسے وہ سمجھ گیا کہ اسے خاموش ہو جانا چاہیے، کتے نے ہلکی سی غراہٹ نکالی اور اپنے دونوں پیروں پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں۔ سلطان نے جلدی سے اس کی رسی قریبی نشست گاہ کے پائے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دی۔ سارا دربار خوف زدہ نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان واپس اپنی نشست پر آ کر بیٹھے اور غسیلی نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو اب زمین سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اور اپنے کپڑوں کو درست کر رہی تھی۔ اے عورت، کیا تم عقل سے پیدل ہو جو تم اس قدر خطرناک حیوان کو بھرے دربار میں لے کر آ گئی؟ آخر اس حیوان کے یہاں لانے کا تمہارا کیا مقصد تھا؟ بالفرض اگر یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا اور کسی پر حملہ کر دیتا تو کیا تم کسی نقصان کی ذمہ داری اٹھاتی؟ اس عورت کے چہرے پر تھوڑی سی شرمندگی نظر آئی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد
اس کے چہرے پر ڈھٹائی چھا گئی اور وہ کہنے لگی، اے سلطان، جس جرم کی میں آپ کو اطلاع دینے والی ہوں، اس کے مجرم کو پکڑ کر آپ کے پاس لانا ضروری تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آپ میری بات کا یقین ہی نہ کرتے۔ سلطان چونک اٹھے۔ وہ عورت کیسی فاتر العقل بات کر رہی تھی، جاننے کے لیے ضروری تھا کہ سلطان اس کی پوری بات سنتے۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور بولے، کون سا جرم اور کیسا جرم؟ اپنی بات کی وضاحت کرو اور کھل کر ساری داستان بیان کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا لایا ہوا یہ حیوان بفر جائے۔ عورت نے ایک نظر اپنے ساتھ خاموشی سے بیٹھے ہوئے کتے پر ڈالی۔ وہ کتا عورت کے ساتھ بالکل عام انداز میں بیٹھا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی عورت کی جانب حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عورت کہنے لگی، اے سلطان، آپ کو شاید یقین نہ آئے، مگر میں جو کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ بالکل 16 آنے درست ہے۔ میں جس حیوان کو پکڑ کر آج آپ کے پاس لائی ہوں، اس کتے نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ کچھ وقت قبل تک میں بھی ایک نیک اور شریف عورت تھی، مگر اب آپ کی رعایا کے اس کتے نے مجھے داغدار کر دیا ہے۔ سلطان سمیت دربار میں موجود سبھی افراد بری طرح سے چونک اٹھے۔ عورت کی بات میں نہ کوئی سر تھا اور نہ ہی پیر، لیکن وہ عورت بڑی ہی سنگین بات کر رہی تھی۔ سلطان نے اسے اشارہ دیا کہ وہ اپنی بات کو جاری رکھے اور مکمل کرے۔ یک لخت ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ عورت جوان اور خوبصورت تو تھی، مگر نہ جانے کیوں سلطان کو اس عورت میں مخصوص قسم کا عامیانہ پن نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس میں وہ نسوانیت محسوس ہی نہ ہو رہی تھی جس کی بنا پر کوئی عورت اپنی عزت کا خیال کرتی ہے۔ کچھ دیر ہونے کے بعد اس عورت نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، اے سلطان، جس کتے کو آپ میرے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رات کے اندھیرے میں یہ میری چارپائی پر چڑھ آیا، اور ابھی اس عورت نے اتنی ہی بات کی تھی کہ دربار کہہ کہوں سے گونج اٹھا۔ دربار میں اس وقت مرد موجود تھے۔ غیر ارادی طور پر سپاہیوں اور وزیروں نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ صرف سلطان تھے جو شدید ناگواری محسوس کرتے ہوئے اس عورت کی بات کو سن رہے تھے۔ سلطان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس عورت کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ عورت خاموش تو ہو گئی، مگر پھر سے رونے لگی۔ سلطان سخت نظروں سے اس عورت کو گھور رہے تھے۔ درباری بھی کہہ کہا لگانے کے بعد اب خاموش ہو چکے تھے۔ ان کے درمیان دھیمی دھیمی سرگوشیاں جاری تھیں۔ وہ ہاتھ سے اس عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ سلطان نے ان درباریوں کی طرف مڑ کر انہیں مخاطب کیا، آپ حضرات دربار سے باہر تشریف لے جائیں۔ محل کے داخلی دروازے کے باہر وزیر آپ سب کی امداد آپ تک پہنچا دے گا۔ اس وقت میں اس عورت کے مسئلے کو ذرا تفصیل سے سننا چاہتا ہوں، مگر چونکہ اس کا مسئلہ کسی خاص نوعیت کا لگتا ہے تو میرا خیال ہے کہ مردوں کی یہاں موجودگی مناسب نہیں۔ اتنا کہتے ہی سلطان نے ان درباریوں کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ سب کے سب خاموشی سے باہر جانے لگے۔ چند ہی لمحوں کے بعد دربار خالی ہو گیا۔ سلطان نے سپاہیوں کو بھی محل سے باہر بھیج دیا۔ دربار میں صرف وزیر رہ گیا اور وہ عورت جس نے سلطان کو اپنی داستان سنائی تھی۔ سلطان نے اس عورت کو مخاطب کیا اور بولے، کیا کہانی گھڑ رہی ہو اے بے وقوف عورت؟ کیا تم جانتی نہیں کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ ایک انسان اور ایک جانور کا ملاپ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کتے میں اتنا عقل و شعور تھا کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتا؟ اسے اپنی جنس کا پتہ ہے۔ یقینی طور پر اگر اس کے اندر شہوت کی خواہش ہوتی تو یہ اپنی جنس کی طرف ہی راغب ہوتا۔ کہ تمہارا انتخاب آخر کیوں کرتا؟ تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے؟ سلطان کے سوال پر یہ عورت سوالیہ نظروں سے سلطان کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، سلطان، میرے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت، مگر میرے پاس مجرم موجود ہے۔ یہ کتا
अरसा दराज से मेरे घर में रह रहा है। किसी ने मुझे तोहफा दिया था। आप देख सकते हैं कि ये कुत्ता आम कुत्तों से कदरे मुख्तलिफ है। इसमें इंसानों वाली आदतें पाई जाती हैं। इसने वाकई रात के अंधेरे में मेरे साथ ज्यादती की है, इसलिए मैं इसे पकड़कर आपके पास लाई हूँ। आपको चाहिए आप मुझे इंसाफ दिलाएं या ना दिलाएं, मगर इस खतरनाक कुत्ते को अपने पास कैद कर लें। इससे दूसरी औरतों की इज्जत और जान को भी खतरा हो सकता है। सुल्तान को उस औरत की बात पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर उन्हें मजबूरन उस औरत की बात पर खामोश होना पड़ा। वो कभी उस औरत को देखते और कभी साथ बैठे हुए कुत्ते को, जो अब अपनी जुबान निकाले हाँप रहा था। वो जितना भी अजीब था, लेकिन था तो वो बहरहाल एक हैवान। सुल्तान ने वजीर को इशारा किया कि वो इस कुत्ते को ले जाकर काल कोठरी में कैद कर दे, क्योंकि अगर वो इस कदर खतरनाक हैवान था तो यकीनी तौर पर रियाया को इससे खतरा हो सकता था। वजीर ने सरे तस्लीम खम किया और लपक कर कुत्ते की रस्सी खोल ली। कुत्ता सुकून से बैठा था, मगर जैसे ही वजीर ने उसकी रस्सी खोली, वो लपक कर वजीर पर हमला आवर हो गया। सुल्तान ने करीब पड़ा हुआ डंडा उठाकर उस कुत्ते के सर पर रसीद किया। खून तो ना निकला, मगर कुत्ता बेहोश हो गया। सुल्तान ने मखसूस जगह पर वार किया था। उस कुत्ते के बेहोश वजूद को वजीर घसीटते हुए काल कोठरी की जानब ले गया। अब वो औरत सुल्तान के साथ अकेली थी। सुल्तान ने एक दफा फिर उस औरत का गहरी नजर से जायजा लिया। अब उसके चेहरे पर काफी तमानियत नजर आ रही थी। सुल्तान गहरी नजरों से उस औरत का जायजा ले रहे थे। सुल्तान की नजरों से घबरा कर वो औरत कभी दाएं देखती और कभी बाएं। अचानक सुल्तान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें उस औरत को देख देख कर किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। गैर महसूस तरीके से उन्होंने उस औरत को अपने पास मौजूद नशिस्त पर बैठने का इशारा किया। ऐ औरत, तुम सफर करके आई हो और एक हैवान को अपने साथ घसीटते हुए लेकर आई हो। यकीनी तौर पर तुम थक चुकी होगी। मेरे ख्याल में तुम्हें बैठ जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए मशरूब मंगवाता हूँ। औरत एकदम चौंक पड़ी। उसने हैरत से सुल्तान को देखा, लेकिन वो सुल्तान की दरिया दिली और फयाजी के किस्से सुन चुकी थी। उसे लगा कि सुल्तान उसका ख्याल करने के लिए उसे बैठने का कह रहे हैं। औरत खामोशी से जरा फासले पर पड़ी हुई एक नशिस्त पर बैठ गई। वजीर कुत्ते को काल कोठरी में बंद करके वापस आ चुका था। तब भी सुल्तान ने वजीर को मुखातिब किया, ऐ वजीर, कनीज खाने में से किसी कनीज को बुलाया जाए। बेहतर तो यही है कि तुम उस कनीज को बुलाओ जो अक्सर व बेशतर मलका आलिया की जाती खिदमत पर मामूर होती है। मुझे उससे कुछ काम है। औरत चौंक कर सुल्तान को देखने लगी, मगर सुल्तान का लहजा बिल्कुल आम सा था। वजीर ने गर्दन हिलाई और पलट गया। थोड़ी देर के बाद दरबार में एक दुबली पतली सी कनीज हाजिर हो गई। वो दरमियानी उम्र की थी और बहुत ही अक्लमंद और चालाक मालूम होती थी। उसने आते ही सुल्तान से कहा, जी मेरे सुल्तान, आपने मुझे याद किया, मेरे लिए क्या हुक्म है? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए सीधा उस कनीज की आंखों में झांका और कहने लगे, मेरे दरबार में आज एक खास मेहमान है जो दूर से सफर करके आई है। मैं चाहता हूँ तुम इसके लिए एक खास मशरूब तैयार करके लाओ। तुम समझती हो ना खास मशरूब से मेरा क्या मतलब है? ऐसा मशरूब जिसके पीते ही इस औरत की सारी थकन उतर जाए। सुल्तान मुसलसल कनीज की आंखों में झांक रहे थे। सुल्तान का हुक्म सुनते सुनते वो कनीज चौंक उठी। सुल्तान उसे हाथ के इशारे से कुछ समझा रहे थे। इशारा इतना महूम सा था कि सिर्फ उस कनीज ने देखा। दूर बैठी हुई औरत अपने ही ख्यालों में गुम थी। वो बार बार अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि सुल्तान उस कनीज को क्या इशारा कर रहे हैं। कनीज इशारा समझ गई थी। उसने फौरन से पहले समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और कहने लगी, आप बेफिक्र रहिए मेरे सुल्तान, मैं अभी जाकर खास मेहमान के लिए खास मशरूब लेकर आती हूँ। यकीनन आपको मायूसी नहीं होगी। कनीज मुस्कुराते हुए चली गई तो सुल्तान ने अपना रुख फिर से उस औरत की जानब मोड़ लिया।
सुल्तान मुअज्जम बिल्कुल खामोश थे, कुछ नहीं कह रहे थे, सिर्फ खामोश नजरों से उस औरत का जायजा ले रहे थे। तभी ये औरत एकदम उठ खड़ी हुई। ऐ सुल्तान, मैं अब इजाजत चाहती हूँ, मैं अपने घर रवाना होना चाहती हूँ। मगर सुल्तान का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने उसे वापस बैठने का इशारा किया और कहा कि वो मशरूब पी कर जाए। कुछ ही देर के बाद कनीज वो मशरूब लेकर हाजिर हो गई। मिट्टी के एक प्याले में रखा हुआ सुर्ख रंग का मशरूब दूर से ही बहुत फरद बख्श लग रहा था। कनीज ने उस मशरूब को उस औरत के आगे पेश किया तो उस औरत ने ना चाहते हुए भी कनीज से उस मशरूब का प्याला पकड़ा और एक ही घूंट में सारे प्याले को खाली कर दिया। उसे बेहद राहत महसूस हो रही थी। प्याला खाली करते ही उसने कनीज के हवाले किया और फिर से उठ खड़ी हुई। ऐ सुल्तान, अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं अभी उसका आधा जुमला उसके मुंह में ही था कि अचानक उसको जोर का चक्कर आया। उस औरत की नजरों के सामने जमीन और आसमान घूमने लगे। सुल्तान और वो कनीज आंखों के आगे से गायब हो गए और अचानक वो लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरी। सुल्तान ने कनीज को इशारा किया, वो लपक कर आगे बढ़ी और उस औरत को सीधा करके उसका मुआयना किया। वो बेहोश हो चुकी थी। हुजूर, ये औरत बेहोश हो चुकी है, अब इसका क्या करना है? सुल्तान एकदम अपनी नशिस्त से उठे। उन्होंने कनीज को हुक्म दिया, बिल्कुल मैं यही चाहता था। चंद और औरतों को बुला लो, इस औरत को एहतियात के साथ उठाकर शाही तबीब खाने में ले जाओ और शाही तबीब को मेरे पास भेजो। मैं उसे एक खास हुक्म देना चाहता हूँ। कनीज ने सुल्तान की बात समझ ली थी। वो फौरन उठी और कनीज खाने से चंद कनीजों को बुलाने चली गई। कुछ ही देर के बाद चंद ताकतवर कनीजें दरबार में उस औरत को उठाकर ले जा चुकी थी। सुल्तान दरबार में टहलते हुए मुंतजिर थे कि शाही तबीब उनके पास आए। जरा ही देर गुजरी थी कि शाही तबीब तकरीबन दौड़ता हुआ सुल्तान के पास आया। जी सुल्तान, आपने मुझे याद फरमाया है, क्या कोई खास हुक्म है? शाही तबीब के सवाल पर सुल्तान ने नशिस्त पर बैठते हुए उसे भी बैठने का इशारा किया और बोले, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, एक बेहद खास काम है। शायद तुमने देख लिया होगा कि चंद कनीजें एक बेहोश औरत को तुम्हारे तबीब खाने पर लेकर गई हैं। मेरा हुक्म यह है कि उस औरत के हाथ और पांव बांध दो ताकि वो कोई हरकत न कर सके। इस औरत का मुआयना करो, चाहे खुद या चाहे अपनी बीवी से इस काम का कहो, वो भी हिकमत जानती है। मैं बस इतना मालूम करना चाहता हूँ कि आया ये औरत हामला है या नहीं, क्योंकि मुझे उसकी जारी हुलिया में एक अजीब सी बात महसूस हो रही थी। उसकी आंखों का पीलापन इस बात की निशानदेही कर रहा था कि उसके वजूद के अंदर एक और जिंदगी नशो नुमा पा रही है। शायद इब्तदाई दिन होने की वजह से उसका पेट वाजे नहीं था, इसीलिए मुझे तशखीस के लिए तुम्हारी मदद लेना पड़ी। तबीब चौंक उठा। ठीक है हुजूर, मैं उस औरत की तशखीस करके जल्द ही आपको इतला देता हूँ और आपकी हिदायत के मुताबिक मैं उस औरत को हाथ पांव बांध दूंगा ताकि वह भागने के काबिल न रहे। तबीब सुल्तान को तसल्ली देकर चला गया तो सुल्तान ने मुअज्जम बेचैनी के साथ दरबार में टहलने लगे। ना जाने क्यों उन्हें इस मामले से गहरे गुनाह की बू आ रही थी। दिन धीरे धीरे सरकने लगा, मगर सुल्तान को शाही तबीब की तशखीस का इंतजार था। शाम के साए ढलने के करीब थे जिस वक्त शाही तबीब ने सुल्तान के पास आने की इजाजत चाही। सुल्तान उस वक्त अपनी ख्वाबगाह में मौजूद थे और मगरिब की नमाज अदा करने की तैयारी कर रहे थे। तबीब ने अंदर आकर सुल्तान को सलाम किया तो सुल्तान ने उसे मुखातिब किया और बोले, ऐ तबीब, क्या तुमने मेरे दिए हुए काम को मुकम्मल कर लिया? जो कुछ मैंने तुमसे कहा था क्या वो दुरुस्त था या गलत? तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? तबीब के चेहरे पर किसी बड़े राज के छुपाए जाने वाली कैफियत थी। उसने सुल्तान की बात सुनते ही इंतहाई राजदाराना अंदाज में सुल्तान की जानब झुककर सरगोशी की। आप दुरुस्त फरमा रहे थे मेरे सुल्तान, आपकी तशखीस बिल्कुल दुरुस्त थी। औरत वाकई हामला है।
مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسے حاملہ ہوئے صرف چند ہی دن گزرے ہیں۔ سلطان بری طرح سے چونک اٹھے۔ اس عورت نے سلطان سے یہی کہا تھا کہ کتے نے 2 روز قبل اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کیا وہ عورت درست کہہ رہی تھی؟ اور اگر واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی تو اس کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ سلطان کو ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہوا کہ نہ جانے آنے والے وقتوں میں انہیں اور مصر کے لوگوں کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے اپنے خیال کی تردید کر دی۔ انہیں اس عورت کے بیان پر ہی شک تھا، مگر نہ تو ان کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی ٹھوس دلیل۔ ہاں، مگر عورت کے کہے ہوئے بیان کی تصدیق تقریباً ہو چکی تھی۔ سلطان نے خاموشی سے شاہی طبیب کا شکریہ ادا کیا اور اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ شاہی طبیب سلطان کو سلام کر کے رخصت ہو گیا تو سلطان نماز ادا کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ نماز ادا کر چکے تھے اور جائے نماز پر بیٹھے ہوئے مسلسل اسی واقعے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے اس خیال پر عمل کرنے کا سوچا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر دربار میں جا رہے تھے۔ دربار میں پہنچتے ہی سلطان نے وزیر کو بلوایا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد سلطان کے پاس موجود تھا اور کہنے لگا، جی یا میرے سلطان، اب کیا حکم ہے؟ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور بولے، میں چاہتا ہوں کہ تم 2 سپاہیوں کو میرے پاس بھیجو جو چاقو چبند اور پھرتیلے ہوں اور دن رات میرا دیا ہوا کام مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ وزیر کچھ سوچنے کے انداز میں تھوڑی دیر تک اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا رہا اور پھر سلطان سے اجازت لے کر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 چاقو چبند سپاہی تھے جن کی آنکھوں سے ذہانت ٹپک رہی تھی اور وہ ہوشیار اور طاقتور معلوم ہو رہے تھے۔ سلطان نے ان سپاہیوں کے سلام کے جواب میں انہیں وعلیکم السلام کہا اور پھر بولے، میں تمہیں ایک عورت کے گھر کا پتہ بتاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں دن رات باری باری اس عورت کے گھر کا پہرا دو۔ وہاں ہونے والی ہر معمولی اور غیر معمولی چیز کی مجھے اطلاع دو۔ کون آتا ہے، کون جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ مجھے ایک خاص اشارے کی تلاش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے پہرے کے دوران مجھے وہ شہادت مل جائے۔ اس کے بعد ہی میں ایک خاص مسئلے میں کسی قسم کا قدم اٹھا سکوں گا۔ اس سے پہلے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ دونوں سپاہی سلطان کی بات کو سمجھ چکے تھے۔ سلطان نے اس عورت کے گھر کا پتہ بتایا جسے حال ہی میں انہوں نے بے ہوش کر کے محل میں قید کر لیا تھا۔ سپاہی اجازت لے کر رخصت ہو گئے اور سلطان بھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک کنیز نے آ کر اطلاع دی کہ اے سلطان، جس عورت کو آپ نے قید کروایا ہے وہ بے حد شور اور ہنگامہ کر رہی ہے اور بار بار چلا رہی ہے کہ اسے بتایا جائے کہ آخر اسے کس جرم کی بداش میں قید کیا گیا ہے۔ جو بھی اس کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم نے اسے ہاتھوں اور پیروں سے مکمل طور پر باندھ کر رکھا ہے۔ سلطان قدرے پریشان سے ہو گئے۔ عورت کا رویہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ آخر وہ اتنا ہنگامہ کیوں کر رہی تھی؟ مگر سلطان نے اسے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ بغیر کسی ثبوت اور شہادت کے نہ تو وہ اس عورت کو محل سے جانے سے روک سکتے تھے اور نہ ہی اسے گرفتار کر سکتے تھے۔ وہ دن خاموشی سے گزر گیا اور اس سے اگلا دن بھی اسی طرح ایک کے بعد ایک دن گزرتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا۔ وہ عورت اب محل میں خود کو محفوظ تصور کرنے لگی تھی۔ سلطان نے اسے کمرے تک محدود کر دیا تھا، تاہم اس کے ہاتھ اور پیر کھلوا دیے تھے۔ اسے کھانا پینا وقت پر مہیا کیا جا رہا تھا، لیکن نہ تو اسے کسی سے ملنے کی اجازت تھی اور نہ ہی سلطان اسے محل سے باہر جانے کی اجازت دے رہے تھے۔ ایک ہفتہ گزرتے ہی وہ دونوں سپاہی ایک روز سلطان کے پاس پہنچے۔ سلطان نے انہیں مخاطب کیا اور بولے، بتاؤ سپاہیوں، کیا معلومات لے کر آئے ہو؟ سپاہیوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور ایک سپاہی سلطان سے کہنے لگا، اے میرے سلطان، آپ نے ہمیں جس عورت کی رہائش گاہ کا پہرا دینے کے لیے مامور کیا تھا، ہم نے ایک ہفتے تک
वहां का हाजिर दिमागी से पहरा दिया है। जिस वक्त हम में से कोई भी शख्स पहरे पर मौजूद होता था, हम में से कोई भी एक पल के लिए भी अपनी आंख ना झपकता था, मगर इसके बावजूद इस औरत के मकान पर कुछ भी गैर मामूली होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि वो मकान तो ऐसे वीरान पड़ा है कि सालों से उसमें ना कोई आया था और ना ही कोई आएगा। यूं लगता है कि ये औरत मकान की वाहिद रिहायशी थी। यहाँ तक कि इस औरत का कोई रिश्तेदार भी इससे मिलने के लिए नहीं आया। सुल्तान चौंक उठे। उन्होंने सिपाही से सवाल किया, क्या कोई मर्द इस औरत से मिलने के लिए वहां नहीं आया? सुल्तान के सवाल पर सिपाही ने नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं सुल्तान, कोई मर्द इस औरत से मिलने के लिए वहां नहीं आया। हमने आसपास के पड़ोसियों से भी ढके छुपे अंदाज में इस औरत के मुतालिक छानबीन की, मगर वो भी इसके मुतालिक कुछ ज्यादा नहीं जानते। उनके बकौल ये औरत अपने घर से बहुत ही कम बाहर निकलती थी और ज्यादातर लोगों से मेल मुलाकात पसंद नहीं करती थी। हाँ, मगर उन्होंने इस औरत के घर में एक कुत्ते की मौजूदगी का जरूर बताया है। सभी मोहल्ले वाले इस कुत्ते से सख्त तंग थे क्योंकि वो इंतहाई खूनखार है, मगर उनका कहना यह था कि ये औरत हर वक्त उसे रस्सी से बांध के रखती थी। मोहल्ले वालों ने यह भी बताया है कि चंद ही दिन हुए हैं ये कुत्ता उसके पास आया था। इससे पहले तो इसके पास ऐसे किसी हैवान की मौजूदगी ना थी। सिपाही अपनी बात मुकम्मल कर चुका था, मगर सुल्तान की उलझन में मजीद इजाफा हो गया था। सारे इशारे इस औरत की बात की सच्चाई की जानब जा रहे थे, मगर सिर्फ वाहिद सुल्तान का दिल था जो ये कहता था कि वो औरत सच नहीं बोल रही। सिपाहियों ने जो देखा था वो सुल्तान को बता दिया था, मगर सुल्तान अपने दिल का क्या करते जो किसी भी सूरत इस औरत की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ देर तक दरबार में बैठे सोचते रहे। सिपाही रुखसत होकर जा चुके थे। तभी सुल्तान को उस कुत्ते का ख्याल आया जिन्होंने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया था और उसके बाद पलट कर उसे देखा तक न था। इस ख्याल का आना था कि सुल्तान चौंक उठे और फौरन से उठकर उसी काल कोठरी की जानब रवाना हो गए। काल कोठरी महल के निचले हिस्से में वाक़या थी, जहां पर खतरनाक मुजरिमों को बंद किया जाता था। उन्हीं में से एक के अंदर इस कुत्ते को बांधा गया था। सुल्तान उस कोठरी के पास पहुंचे। वहां रोशनी का इंतजाम तो था और कुत्ते के आगे खाना भी डाला गया था। सुल्तान को वहां पड़ी हुई हड्डियां देखकर अंदाजा हुआ कि यह कुत्ता काफी खुश खुराक है। सुल्तान के हाथ में एक बड़ी सी मशल थी जो काल कोठरी की तारीक फजा को रोशन कर रही थी। कुत्ता जमीन पर बैठा अपनी जबान से अपने मुंह को चाट रहा था। सुल्तान को देखकर वो अपनी छोटी छोटी आंखों से उन्हें घूरने लगा। सुल्तान बगौर उस कुत्ते को देख रहे थे। उनके जहन में उस औरत की बातें गूंज रही थीं और सिपाहियों की बातें भी उनके दिमाग में शोर मचा रही थी। सामने ही वो कुत्ता बैठा था जिसके मुताल्लिक उस औरत का कहना था कि इसने रात के अंधेरे में औरत के साथ मिलाप करने की कोशिश की है। गहरी नजरों से कुत्ते का जायजा लेते हुए अचानक सुल्तान बुरी तरह से चौंके। उनके जहन में एक पुरानी याद दर आई थी। कुत्ते की शक्ल सूरत और जसामत और जिस्म पर उगे हुए बाल आम कुत्तों से मुख्तलिफ थे। वो उसे किसी और ही नस्ल का कुत्ता जाहिर कर रहे थे। सुल्तान को याद आया कि वो एक सफर के दौरान मिस्र के एक ऐसे इलाके से गुजरे थे जो रेतीला था और वहां पर दरख्तों और फूलों पौधों का नामो निशान तक नहीं था। वहां के लोग अपने स्याह रंग और मजबूत कद काठी की वजह से बेहद मशहूर थे। इस कुत्ते के जिस्म पर जो बाल थे, जिसने उसके पूरे जिस्म को ढांप रखा था, बिल्कुल किसी भेड़ की तरह। वो बाल उन्होंने वहीं पर मौजूद कुत्तों के जिस्म पर देखे थे। वो अजीबुल नस्ल कुत्ते थे। सुल्तान ने जब उन कुत्तों के मालिकों से वजह पूछी तो वो हंसकर सुल्तान से यही कहते थे कि वो दो मुख्तलिफ नस्ल के कुत्तों का, जानवरों का आपस में मिलाप करवाते हैं, जिससे ये खूनखार किस्म के कुत्ते जन्म लेते हैं। ऐसे कुत्ते उनके लिए शिकार में मदद फराहम करते हैं क्योंकि उन्हें खाना पीने के लिए फल और सब्जियां मुयस्सर ना थी। इस कुत्ते के बाल भी बिल्कुल वैसे ही थे, मगर इसकी बाकी जिसामत मुख्तलिफ थी। इस ख्याल का आना था कि सुल्तान को
اپنے سوالوں کے جوابات ملنے شروع ہو گئے، مگر ابھی بھی کہانی ادھوری تھی۔ کچھ دیر تک اسی کتے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد آخر سلطان نے ایک طریقہ سوچ ہی لیا۔ صرف ایک ہی راستہ بچا تھا جس راستے پر چل کر وہ اس معاملے کو حل کر سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان دربار میں بیٹھے وزیر کو اپنے پاس بلا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وزیر آیا، سلطان نے انہیں مخاطب کیا اور بولے، اے وزیر، ایک انتہائی اہم کام آن پڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پورے ملک میں اعلان کروا دو کہ مصر کے کونے کونے میں موجود ہر شخص اپنا پالتو جانور لے کر محل میں حاضر ہو جائے۔ کل کے روز ان پالتو جانوروں کی خوبصورتی اور بہادری کا ایک خاص مقابلہ کروایا جائے گا۔ جس کا بھی پالتو جانور سلطان کو پسند آیا، وہ چاہے گائے ہو یا بیل، بکری ہو یا کتا یا پھر اونٹ، سلطان اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ مگر شرط صرف یہ ہے کہ اس جانور کا طاقتور اور انوکھا ہونا ضروری ہے۔ جانور کے ساتھ اس کا وہی مالک محل کے اندر آئے گا جسے اس جانور کو پالا ہوگا، اور وہ اس کی انوکھے ہونے کی وجہ بھی جانتا ہوگا۔ سلطان مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد ہی اس شخص کو انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ وزیر نے جب یہ سنا تو بہت حیران تو ہوا، لیکن وہ جان چکا تھا کہ سلطان کے ذہن میں یقیناً کوئی انوکھی ترکیب آئی ہے، ورنہ آج تک سلطان نے ایسا کوئی حکم نہ دیا تھا۔ محل کے اندر موجود لوگوں کو اس حکم کی خبر نہ تھی۔ سلطان نے خاص طور پر کنیزوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سلطان اور سلطان کے معاملات سے اس عورت کو دور رکھیں گے۔ وزیر نے سلطان کا حکم پورا کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ملک کے تمام شہروں میں یہ منادی کروائی جا رہی تھی کہ 2 روز بعد بادشاہ کے محل میں ایک خاص قسم کا مقابلہ منعقد کروایا جائے گا، جس میں ہر شخص اپنے پاس موجود پالتو جانور کو لے کر حاضر ہوگا۔ سلطان ان پالتو جانوروں میں سے ایک مخصوص خونخوار، طاقتور اور انوکھے جانور کا انتخاب کریں گے۔ پسند آنے کی صورت میں سلطان اس جانور کے مالک کو بھاری انعام سے نوازیں گے اور اس کی زندگی سنوار دیں گے۔ حکم کا سننا تھا کہ ہر شخص اپنے گھر میں موجود جانور کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ ان سب کو ہی انعام و اکرام سے زیادہ سلطان کے محل میں جا کر مقابلے میں حصہ لینے کی طلب تھی۔ یہ حکم مصر کے گوشے گوشے میں سنایا گیا تھا۔ لوگ بے تابی سے مقابلے کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے اپنے اپنے پالتو جانوروں کو نکھار کر، سنوار کر مقابلے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ یہ 2-3 دن سلطان نے بڑی بے تابی سے گزارے۔ انہیں شدت سے مقابلے کے دن کا انتظار تھا تاکہ وہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکیں۔ جس روز مقابلے کا دن تھا، سلطان علل صبح ہی بیدار ہو گئے۔ مقابلہ سلطان کے محل کے پچھلی جانب واقع ایک بڑے میدان میں منعقد کیا گیا تھا۔ موسم ان دنوں انتہائی خوشگوار تھا، اس لیے سلطان کو لوگوں کے جنبے غفیر کے اکٹھے ہونے اور گرمی سے بلبلانے کی بھی فکر نہ تھی۔ وہ سب کے سب سلطان کی چاہت میں کھنچے چلے آ رہے تھے۔ صبح صبح سے ہی دور دراز سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو ساتھ لیے سلطان کے میدان میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بڑا ہی خوبصورت منظر تھا۔ کسی شخص نے بالکل سفید رنگ کی گائے کی رسی تھامی ہوئی تھی اور کسی شخص کے پاس سیاہ رنگ کے بالوں سے ڈھکی ہوئی بالکل چھوٹی سی بلی تھی۔ کوئی شخص نیلی آنکھوں والی بھیڑ کو لے کر آ رہا تھا تو کسی نے ایسے اونٹ کو پکڑ رکھا تھا جس کی گردن زرافے جتنی لمبی تھی۔ یہ سب عجیب الخلقت جاندار تھے جو کسی نہ کسی خوش قسمتی کے تحت ان لوگوں کے پاس موجود تھے۔ مگر اب جب انہوں نے سلطان کا حکم سنا تھا تو انہیں وہ اپنی منافع کی پوٹلیاں نظر آنے لگے تھے۔ سلطان خاموشی سے میدان میں سب کو اکٹھا ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہیں بس اسی مخصوص علاقے کے لوگوں کا انتظار تھا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک سلطان کو ایک سمت سے اونچے لمبے افراد کا ایک گروہ میدان کی جانب بڑھتا ہوا نظر آیا۔ وہ دور سے کسی نقطے کی طرح نظر آ رہے تھے، مگر جوں جوں وہ قریب آتے گئے، سلطان نے بغور دیکھنے پر اندازہ کر لیا کہ وہ وہی لوگ اسی علاقے کے لوگ ہیں۔ ان کا توے کی طرح سیاہ رنگ
और मजबूत कद काठ ही उन्हें दूर से सब में मुमताज कर रहा था। मगर सबसे ज्यादा हैरत अंगेज चौंकने की बात यह थी कि पालतू जानवरों के नाम पर वो अपने साथ जो कुछ लाए थे उसने मजमे में मौजूद तमाम अफराद को खौफ ज़दा करना शुरू कर दिया था। मगर सुल्तान सुकून से अपनी जगह पर बैठे थे, क्योंकि वो उनके पास तो जानवरों को पहले ही देख चुके थे। वो बिल्कुल वैसे ही कुत्ते थे जैसा कुत्ता वो औरत घसीटती हुई सुल्तान के महल में लेकर आई थी। ऐसे कुत्ते मिस्र की गलियों में ना तो नजर आते थे और ना ही किसी शख्स ने उन्हें कभी देख रखा था, और ना ही आम कुत्ते इतने खूनखार और जसामत में बड़े होते थे। उन मजबूत कद काठी वाले पांचों अफराद ने अपने अपने कुत्तों की रस्सियां मजबूती से थाम रखी थी कि सब लोग चलते हुए आए और मजमे में एक जगह खड़े हो गए। इनके साथ लाए हुए कुत्तों ने आसपास के लोगों और जानवरों पर गुर्राना शुरू कर दिया। मारे खौफ के तमाम लोग इन पांचों अफराद से जरा हटकर खड़े हो गए। इसी वजह से वो पांचों अफराद और उनके कुत्ते सुल्तान को ज्यादा ही वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। सुल्तान का मकसद पूरा हो चुका था। मुकाबला उन्होंने जिस ख्वाहिश के तहत करवाया था वो ख्वाहिश उनके ऐन सामने खड़ी थी, मगर सुल्तान ने सब कुछ अपनी चाल के मुताबिक करना था। जब ही कामयाबी उनके कदम चूम सकती थी। मुकाबला शुरू हुआ। तमाम लोग अपने अपने पालतू जानवरों को लेकर सामने आते चले गए। सुल्तान जानवर का मुआयना करते और आगे बढ़ जाते। आखिरकार चलते चलते वो उन पांचों अफराद के करीब जा पहुंचे जिनके साथ वो खूनखार कुत्ते थे। वो पांचों अफराद बड़ी खुश दिली से सुल्तान से मिले, मगर जैसे ही सुल्तान उनके करीब पहुंचे उनके साथ आए हुए कुत्तों ने गुर्राना शुरू कर दिया और अचानक से सुल्तान पर हमला करना चाहा। शायद वो अजनबियों को पसंद नहीं करते थे। तभी उनके साथ आए हुए अफराद ने एक मखसूस किस्म की गुर्राहट नुमा आवाज निकालकर अपने कुत्तों को चुप करवा दिया। कुत्ते खामोशी से अपने पंजों पर बैठ गए। सुल्तान के लिए यह मंजर हैरान कुन था। वो कुत्ते बिल्कुल अपने मालिकों से खौफजदा मालूम हो रहे थे। सुल्तान पहले ही जानते थे कि उन्होंने क्या करना है। वो दोबारा से अपने मिंबर पर चढ़े। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उन्हें ये पांच अफराद और इनके लाए हुए कुत्ते बेहद पसंद आए हैं। मजमे के तमाम अफराद में मायूसी फैल गई, मगर सुल्तान ने जब ये ऐलान किया कि मुकाबले में शरीक होने वाले तमाम अफराद को दिनार मुहैया किए जाएंगे, सबके चेहरों पर खुशी फैल गई। लोग अपने सुल्तान की सखावत के एक मर्तबा फिर कायल हो गए। सुल्तान का ये ऐलान सुनकर भी वो पांचों अफराद पथरीले तासुरात के साथ अपनी जगहों पर खड़े रहे। शायद ये उनके इलाके की सख्ती थी जो उनके चेहरों से भी छलकती थी। मजमे के अफराद एक एक करके अपने अपने घरों को जाने लगे। सुल्तान ने वजीर और सिपाहियों को इशारा किया तो उन पांचों अफराद और उनके कुत्तों को लेकर एहतियात के साथ महल में रवाना हो गए। महल पहुंचते ही सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन पांचों अफराद की रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। और दूर दराज का सफर करके आए थे, इसीलिए उन्हें गुस्ल वगैरह की सहूलत भी दी गई। जिस वक्त ताज़ा दम होकर ये पांचों अफराद सुल्तान के पास पहुंचे तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन पांचों अफराद के कुत्तों को नीचे ले जाकर बंद कर दिया जाए। वो पांचों अशखास हैरतनाक नजरों से सुल्तान की जानब देखने लगे, मगर सुल्तान ने उन्हें कहा कि वो उनसे अकेले में कुछ खास बात करना चाहते हैं। इसीलिए वो खूनखार कुत्ते जो महल में आने वाले हर शख्स को देखकर गुर्रा रहे थे, उन्हें आराम का मौका मिलना चाहिए। उन पांचों अफराद ने सुल्तान की बात पर सर तस्लीम खम कर दिया। उन्हें कोई एतराज न था, बल्कि वो तो अपने इनाम के मुंतजर थे। सपार से तासुरात के साथ ये पांचों अफराद सुल्तान के सामने उस वक्त मौजूद थे। सुल्तान ने महसूस किया कि उनमें एक शख्स कुत्तों की जानब कुछ ज्यादा ही रगबत रखता है। वो उन पांचों में से कुछ ज्यादा ही नुमाया हो रहा था। जब सिपाही कुत्तों को लेकर वहां से जाने लगे तो वो एक एक करके हर कुत्ते के सर पर हाथ फेरता और उन्हें प्यार करता। उसके साथ आए हुए चारों अफराद भी आम से अंदाज में ये मंजर देख रहे थे। गोया
उनके लिए ये एक मामूली बात हो। सिपाही कुत्तों को लेकर चले गए तो सुल्तान ने उन पांचों को मुखातिब किया, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मेरा हुक्म का मान रखा और अपने इलाके से पालतू जानवर लेकर मेरे दरबार में हाजिर हुए। मैं जानना चाहता हूँ कि इन पालतू जानवरों की क्या खासियत है और इन्हें कौन अपने पास पालता है। क्या आपके इलाके के तमाम अफराद के पास ऐसे ही कुत्ते मौजूद हैं या वो किसी और किस्म के जानवर पालते हैं? सुल्तान की बात सुनकर पहली मर्तबा उन पांचों अफराद में से एक शख्स मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ऐ सुल्तान, हमारे कुत्ते ही हमारे इलाके की खासियत हैं। जिन इलाकों में हम रहते हैं वहां पर बाकसरत बटेर आते हैं जिनके शिकार के लिए हमने इन कुत्तों को तैयार किया है। हमें वहां पर खाने पीने की बेहद तंगी का सामना है। दरख्त और पेड़ पौधे तो उगते नहीं, सब्जियां नहीं होती, अनाज उगाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए हम खाने के लिए सिर्फ जंगली जानवर पर ही इन्हिसार करते हैं। जिनके शिकार के लिए हमने ये मखसूस किस्म के कुत्ते तैयार किए हैं कि दो तरह के कुत्तों की नस्ल के मिलाप से पैदा होते हैं, जिन्हें हम मखसूस माहौल में नश्व नुमा देकर पालते हैं। ये बेहद खूनखार और ताकतवर होते हैं और अजनबियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन ये अपने मालिक और अपने पालने वाले की शक्ल कभी नहीं भूलते। सुल्तान के चेहरे पर अभी भी सवाल ही सवाल थे। वो तो ये जानना चाहते थे कि आखिर ये सारे कुत्ते उसी एक शख्स के पास क्यों लौट पोट हो रहे थे और उस शख्स में ऐसी कौन सी खास बात थी। तभी उस शख्स ने सुल्तान के चेहरे से गोया उनका सवाल भांप लिया और कहने लगा, मैं जानता हूं कि आप ये सवाल क्यों पूछना चाह रहे थे। मजमे में भी सारे कुत्ते अपने मालिकों को छोड़कर मेरे आसपास जमा हो रहे थे और यहाँ पर भी जाने से पहले सारे कुत्ते मेरे हाथों को चाटकर आगे गए। शायद इसकी वजह यह है कि कुछ अर्सा कबल मेरा जाती कुत्ता गुम गया था। मैं उसे एक रिश्तेदार के घर लेकर गया और उसके बाद मुझे इंतहाई जरूरी काम के तहत वहां से जल्द वापस आना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने उसे खो दिया। वो कुत्ता मेरी औलाद की तरह था। जब जब मुझे उसकी याद आती है तब मैं इलाके में मौजूद दूसरे कुत्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारता हूँ, उनकी तरबियत करता हूँ, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, जिसकी वजह से वो सब मुझे अपना मालिक तसव्वुर करते हैं और मेरे साथ वफादार हो गए हैं। ये बताते हुए उस शख्स का लहजा कदरे भीग गया था। सुल्तान एकदम बुरी तरह से चौंके। तभी उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें सच और झूठ का अंदाजा किस तरह से करना है। उन्होंने उस नौजवान को देखा और मुस्कुरा कर बोले, फिक्र क्यों करते हो? तुम्हें तुम्हारे इलाके से महल में बुलवाने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं तुम्हारी उदासी को दूर कर सकूं। तुम पांचों को इनाम इकराम तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही मैं तुम्हें एक अनोखी चीज दिखाना चाहता हूँ। सुल्तान की इस बात पर उन पांचों के चेहरों पर हैरत फैल गई। वो कभी सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखते और कभी सुल्तान मुअज्जम को। तभी सुल्तान ने वजीर को एक मखसूस इशारा किया। वजीर समझ गया और तेजी से दरबार से बाहर निकलता चला गया। वो पांचों अफराद खामोशी से सुल्तान के सामने खड़े इंतजार कर रहे थे कि उनके सामने क्या चीज पेश करने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद अचानक दरबार के अंदरूनी दरवाजे के करीब एक और राहट सुनाई दी। सबकी नजरें बेइख्तियार उस जानिब मुड़ गईं। थोड़ी देर के बाद सबने देखा कि वजीर एक खतरनाक कुत्ते की रस्सी पकड़े दरबार में दाखिल हो रहा था। यह कुत्ता वही था जिसे वो औरत घसीटते हुए दरबार में लाई थी और सुल्तान ने उसे काल कोठरी में कैद कर दिया था। सुल्तान ने वजीर को इशारा किया कि कुत्ते को छोड़ दो। वजीर ने सुल्तान का इशारा पाते ही खूनखार कुत्ते की रस्सी छोड़ दी। सबकी नजरें उस कुत्ते पर जमी थी, मगर तभी वो हुआ जिसका सवाए सुल्तान के और किसी को अंदाजा न था। कुत्ता एकदम गुर्राया और तेजी से दौड़ता हुआ उन पांचों अफराद में से उस शख्स के कदमों में जाकर लौटने लगा जिसने सुल्तान को बताया था कि उसका कुत्ता खो गया है। वो शख्स फटी फटी नजरों से कभी सुल्तान को देखता और कभी उस कुत्ते को, और फिर फौरन ही
वो नीचे झुका और उसने अपने कुत्ते को प्यार करना शुरू कर दिया। कुत्ता कभी अपने मालिक के हाथ चाटता और कभी उसके पैर। वो अपनी वफादारी का इजहार कर रहा था। उस शख्स ने फटी फटी नजरों से सुल्तान की जानब देखा। सुल्तान मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से उसे देख रहे थे। वो शख्स एकदम घबरा गया। शायद उसने जान लिया था कि सुल्तान ने उसका गुनाह पकड़ लिया है। सुल्तान ने उसके साथ आए हुए चारों अफराद से कहा, आप लोग जा सकते हैं। महल के रिहायशी इलाके में आपकी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया गया है। आप वहां आज का दिन सुकून से गुजारें। आपको इनाम इकराम देकर रुखसत कर दिया जाएगा। वो चारों उलझन भरी नजरों से अपने साथी को देखते हुए वहां से जाने लगे। शायद उन्हें यकीन हो गया था कि सुल्तान ने किसी खास मकसद के तहत उन सबको वहां पर बुलवाया था। उस शख्स के साथी वहां से चले गए तो सुल्तान ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए मुखातिब किया और बोले, तुम्हारा ये अनोखा कुत्ता तुमसे खो गया था, मगर ये हमें मिल गया और हम किसी की अमानत को अपने पास नहीं रखते। इसीलिए मैंने ये सारा खेल रचाया ताकि मैं इस कुत्ते के मालिक तक पहुंच सकूं। और आज देखो, तुम खुद चलकर महल में आ गए और कुत्ते ने तुम्हारे कदमों में लौटकर ये साबित कर दिया कि तुम ही इसके मालिक हो। अब बाकी का राज तुम खुद खोलोगे या मैं? सुल्तान मौज़म के इन अल्फाज के साथ ही वो औरत दरबार में दाखिल होती दिखाई दी। उस औरत के चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। शायद वो खुद को इतने दिनों से कैद रखे जाने पर शदीद गजबनाक थी, मगर वो नहीं जानती थी कि चंद लम्हों के बाद उसकी सुनाई हुई कहानी का भांडा फूटने वाला है। उसीले तासुरात के साथ ये औरत आगे आई, मगर जैसे ही उसकी नजर उस स्याह रंगत वाले शख्स पर पड़ी, औरत का रंग उड़ गया। यूं महसूस हुआ वह भी जमीन पर गिर पड़ेगी। वह फटी फटी आंखों से उस शख्स को देखे जा रही थी। कभी वो सुल्तान को देखती, कभी वो शख्स के कदमों में लौटने वाले कुत्ते को, और कभी होठों पर जुबान फेरने लगती। सुल्तान ने उस शख्स को मुखातिब किया और बोले, क्या तुम इस औरत को जानते हो? अगर तुम अपनी जुबानी मुझे सब कुछ बता दो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि मैं तो इतना जान ही चुका हूँ कि ये कुत्ता अजनबियों के पास नहीं जाता। लेकिन जिस तरह ये औरत इस कुत्ते को घसीटती हुई बगैर किसी खौफ व खतर के यहाँ लाई थी, यकीनन इस कुत्ते के लिए अजनबी नहीं थी। ये कुत्ता तुम्हारा है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो तुम भी इस औरत के लिए अजनबी नहीं हो। यकीनन तुम दोनों ने एक लंबा अरसा एक दूसरे के साथ गुजारा है। अब अपनी कहानी को शुरू से आखिर तक बयान करो, वरना सफाई के हाथ में कोड़ा मौजूद है। तुम दोनों मर्द औरत की खाल उधेड़ दी जाएगी। सुल्तान के लहजे में मौत की सी सख्ती थी और वो दोनों ही अंदर तक काम कर रह गए। फिर उस शख्स ने भांप लिया कि बचाव की कोई सूरत नहीं, तो उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कहने लगा, ऐ सुल्तान, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वाकई ये औरत मेरे लिए अजनबी नहीं है। हम दोनों ने गुनाह किया है। कुछ रोज कबल इस शहर में किसी काम की गरज से आया था। ये कुत्ता मेरे साथ ही था। बाजार में मैंने इस औरत को देखा तो मुझे ये पसंद आ गई। इस औरत ने भी मेरे साथ वक्त गुजारने को बुरा ना समझा। ये मुझे अपने घर ले गई। हमने चंद रातों तक अकेले एक दूसरे के साथ क़याम किया। हम दोनों ही गुनाह में मुलव्वस हो गए। रिहाइश के दौरान ही मैंने अपने कुत्ते को समझा दिया कि इस औरत को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि मैं चंद दिन इसके घर में रहकर और लुत्फ उठाना चाहता था। ये औरत शादी की ख्वाहिशमंद थी, मगर मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। जिस दिन मुझे रवाना होना था, बदकिस्मती से ये औरत कुत्ते को लेकर घर से निकल गई। मेरी रवानगी का वक्त करीब था। मैंने सोचा कुत्ते पर लानत भेजता हूँ और चला जाता हूँ। अगर इस औरत के सामने निकलने लगा तो ये मुझे जाने नहीं देगी, और हो सकता है कि काजी सुल्तान के पास मेरी शिकायत ले जाए। मैं इसके घर से फरार हो गया। यकीनन जब ये वापस आई होगी और इसने मुझे ना पाया तो ये कुत्ता लेकर आपके पास आ गई और मेरी शिकायत की। वो शख्स अब गुस्से की नजरों से उस औरत को घूर रहा था। सुल्तान ने मुड़कर औरत को देखा और बोले, ये तो अपने गुनाह का एतराफ कर ही चुका है। अब तुम ये बताओ कि तुमने क्यों वो कहानी घड़ी थी? ये अपना गुनाह छुपाने के लिए, मगर इसकी जरूरत क्या थी?
मैं जान चुका हूँ कि तुम हामला हो और तुम्हारे हमल की मुद्दत भी चंद दिन है। यकीनी तौर पर तुम्हारे इस शख्स के साथ किए जाने वाले गुनाह के नतीजे में तुम हामला हो चुकी हो। वो औरत झटका खा कर रह गई। सुल्तान के मुंह से अपने हामला होने का सुनते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सुल्तान सब कुछ जान चुके थे। कुछ ही देर के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी, मगर सुल्तान की सख्ती के जवाब में बोली, मैं जान चुकी थी कि मैं हामला हो गई हूँ। ज़ना के जुर्म में आप मुझे फांसी पर चढ़ा देते, इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि एक कहानी घड़ी जाए। इस शख्स का कुत्ता मेरे पास था। वह एक अजीब नस्ल का कुत्ता था। मुझे यकीन था आप उसे देखते ही मान जाएंगे कि वो इंसानों के साथ भी मिलाप की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं इसे पकड़कर यहाँ तक ले आई, मगर मैंने आप जैसा जीरक और अक्लमंद इंसान आज तक नहीं देखा जिसने देखते ही देखते सारे का सारा राज फाश कर दिया हो। औरत रोने लगी थी। वह मर्द भी पशेमानी के आलम में खड़ा था। वो दोनों ज़ना के मुजरिम थे। सुल्तान ने ऐन उसी वक्त उस शख्स को फांसी का हुक्म दे दिया, मगर औरत को बच्चे की पैदाइश तक महल में ठहराने का हुक्म दिया। बच्चे की पैदाइश के बाद उस औरत को जिंदान खाने में डलवा दिया जाएगा। सुल्तान का हुक्म सुनकर वो औरत माफिया मांगने लगी, मगर सुल्तान के नजदीक ज़ना के मुजरिमों का कोई माफी नहीं थी।